चलिए आज के आपके लिए लेके आए हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का सेकंड सेशन सेकंड पार्ट। इसमें हम लोग को पढ़ना है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट में कैसे होता है, हाउ प्लांट टेक द फूड एंड एब्जॉर्ब्ड एंड यूटिलाइज्ड एंड रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस हियर टुडे। ओके, तैयार हैं आप? शुरू करें? ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर ले अमीबा की। डायग्राम आपको ऑलरेडी स्लाइड्स में दिख जाएगा। अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा यूनिसेलुलर है और अमीबा अपने शेप को हमेशा चेंज कर देता है। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द शेप दे फॉर्म अ फॉल्स फीट and that is called pseudopodia. What happened when something come near to the amoeba change the shape and form a false feet called pseudopodia and capture the food. Then how food is captured? Food is captured by forming the pseudopodia and then stored into the vacuoles. Where the food is stored? Food is stored into the vacuoles and digested by false feet called pseudopodia. Confirm, once the food is stored into the vacuoles release the digestive enzymes and digestive enzymes digest the complex food material into simple form, and after the digestion the simple food material is absorbed by the amoeba and utilized for the different purposes, and the waste product is removed outside the body by simple diffusion process. Okay, absorbed digested food and utilized and the waste diffuses to the body surface. Okay, that finished the nutrition in amoeba. Not too much, just taking enough the food by forming the pseudopodia and storing the food into the food vacuoles. Food vacuole release the inner digestive enzyme to digest the food, and then after digestion the food is absorbed and utilized by the amoeba. Next, nutrition in human being. How nutrition occur in human being? Let us learn in detail. You all know this is the nose and this is the mouth. We take the food with our hand into the mouth. Different organisms take the food in different method. You have already learned in class 7 different method of taking food. Okay, today we are discussing about how human take the food. Human take the food with the hand, with the help of hand in the mouth. Then taking enough the food into the mouth is called ingestion. नहीं याद आ रहा? इससे पहले वाला वीडियो खटाक से देख लेना, फर्स्ट वीडियो, पता चल जाएगा व्हाट इज इंजेशन। ठीक है, चलो। तो टेकिंग इन ऑफ द फूड इन माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। व्हाट हैपन व्हेन फूड इज टेकन इनटू द माउथ? द टीथ chew the food. Teeth chew the food. During the chewing, the salivary gland present into the mouth release saliva. क्या रिलीज करता है? saliva that contain the enzymes salivary amylase. उसके अंदर क्या रहता है? salivary amylase रहता है, और that salivary amylase convert the starch into the sugar. Then confirm where the digestion begin. डाइजेशन कहाँ स्टार्ट हुआ? याद रहेगा, डाइजेशन बिगिन नॉट इन द स्टोमक बट स्टार्ट इनटू द माउथ. दैट्स वाई खाना मीठा लगता है, क्योंकि वो स्टार्च किस में बदल गया भैया? शुगर में बहुत गया. रोटी मीठा क्यों लगता है? क्योंकि जो ही हम लोग रोटी खाते हैं, रोटी में क्या रहता है भाई? स्टार्च रहता है, जो शुगर में बदल जाता है और मीठा लगता है. ठीक है. एंड द मिक्सिंग ऑफ फूड, च्यूड फूड इनटू सेलिवा इज कॉल्ड mastication. Mixing of chewed food with saliva is called mastication. Confirm है?
समझ में आ रहा है? मिक्सिंग ऑफ च्यूड फूड विथ सिलिवा इज कॉल्ड मेस्टिकेशन। आ रहा है बात समझ में? मेस्टिकेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ च्यूड फूड विथ सिलिवा। व्हाट इज द नीड टू मिक्स द फूड विथ सिलिवा? This is the first thing is that is the digestion of the starch into the sugar, and the second thing is that the food that we eat is not too slippery, and if food is not slippery it cannot passes through the esophagus. This is the esophagus, food pipe or windpipe also. Okay, then mastication make the food soft and slippery so that it can be pushed down easily by the rhythmic contraction and relaxation of esophagus, and the rhythmic contraction and relaxation of esophagus is known as nothing but that is peristalsis. Then what the peristalsis is? Peristalsis is movement of rhythmic continuous movement of muscles of esophagus to push the food down to where? That is the stomach. खाना कहाँ पहुँच गया भाई? च्यूड होने के बाद खाना कहाँ पहुँचा? खाना पहुँच गया आपके स्टोमक में। देखिए अब आगे क्या होता है। तैयार हैं? बढ़े आगे? ओके चल। अब हम लोग देखते हैं स्टोमक में खाना तो पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया भाई? स्टोमक में। जो ही खाना स्टोमक में पहुंचता है हमारा स्टोमक तैयार हो जाता है। भाई तैयार किसके लिए होता है? लड़ाई पीट तो करना नहीं है। स्टोमक के अंदर भी ग्लैंड होता है। आपको पता है हमारे बॉडी में ढेर सारा ग्लैंडुलर सिस्टम। क्लास 9th में आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा, जिसे पता होगा ढेर सारे ग्लैंड्स होते हैं हमारे बॉडी में, जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, इंजाइम्स, ठीक है, विटामिन्स भी भरा रहता है। तो वो इंजाइम्स और भी केमिकल्स अलग अलग फूड को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बात किया स्टोमक के वाल पे दीवार पे गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा लिक्विड सेक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस। जो सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड जो वाल ऑफ स्टोमक में रहता है वो क्या है? गैस्ट्रिक जूस। याद रहेगा क्या सेक्रेट करता है? गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है? HCl होता है, म्यूकस होता है और एंजाइम्स होता है। क्या क्या होता है? HCl रहता है, म्यूकस रहता है, एंजाइम्स रहता है। पहले HCl से बात कर ले भैया, ठीक है। तो HCl क्या करता है कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जो फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह चला जाता है खाने के मीडियम से हमारे स्टोमक में, उसको सबसे पहले कोशिश करता है कि किल कर दे। कोशिश तो करता ही है, करे ना करे कोशिश करता है, बट करता है मोस्ट ऑफ द केसेस में किल द बैक्टीरियाज। बट द प्रॉब्लम इज ड्यूरिंग द किलिंग ऑफ बैक्टीरिया व्हेन फूड मिक्स विथ HCl it became acidic, and this acid even spread out throughout the wall of stomach, and the wall sometime get wounded, बहुत बार घाव हो जाता है। भाई क्यों होता है घाव? एक्सेस एसिडिक अगर हो जाता है, फास्टिंग वगैरह कर लेते, खाना नहीं खा पाते तो HCl का तो भाई अब देखो थोड़ा भी खाना पहले से अवेलेबल है तो गैस्ट्रिक जूस सेक्रेट होगा, HCl भी सेक्रेट होगा। अगर खाना खाते हो तो HCl क्या करेगा भाई? खाने को एसिडिक बना देगा। और नहीं खाते हैं तो बस हो गया काम तमाम। आपका जो वाल होता है स्टोमक का, उसमें क्या हो जाएगा? उंड होना, घाव होना शुरू हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड अल्सर। क्या होता है वो? उसको अल्सर बोलते हैं अगर कम रहे तो। लेकिन अब है, हमेशा तो होता नहीं। वी आर नॉट ऑलवेज सफर फ्रॉम द अल्सर बिकॉज हेयर इज हेयर लाइक ए स्ट्रक्चर कॉल्ड म्यूकस। देयर आर टू फंक्शन ऑफ द म्यूकस। एट फर्स्ट दे स्प्रेड ओवर द surface of the wall of stomach to prevent the action of the HCl, जिससे HCl यानी एसिड एक्शन नहीं कर पाता है, अल्सर से बचा लेता है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग्स, इट क्रिएट द सरफेस एरिया
फूड जल्दी से वॉश आउट नहीं हो सके, मूव ना करे, फूड को थोड़ा सा एरिया प्रोवाइड करता है वहाँ पे रहने के लिए, जिससे कि आगे का फंक्शन हो सके। तो आपके मन में आएगा आगे का फंक्शन कौन आगे का फंक्शन। अब आपको दिमाग में होगा भाई ये HCl खाली बैक्टीरिया मारने के लिए आया था क्या, और अल्सर देने के लिए आया था क्या? नहीं, HCl फूड को एसिडिक इसलिए करता है क्योंकि अगर वो फूड एसिडिक नहीं रहेगा तो जो इंजाइम्स है, इंजाइम्स या तो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं या तो बेसिक मीडियम में काम करते हैं। अब ये तो ना एसिडिक था, अभी तो एसिडिक हो गया। इसका मतलब है कि इसके अलावा जो गैस्ट्रिक जूस में और भी रिलीज होता है एंजाइम, दैट इज द पेप्सिन एंड रेनिन। दैट पेप्सिन ब्रेक द प्रोटीन। अब देखो अगर एसिडिक मीडियम नहीं होता तो ये पेप्सिन काम नहीं करता, पेप्सिन और रेनिन काम नहीं करता। तो HCl दूसरा क्या करता है, मेक द फूड एसिडिक सो दैट पेप्सिन एंड रेनिन वर्क ऑन एक्ट ऑन द फूड। और ये प्रोटीन को स्मॉल पार्ट्स में चेंज कर देता है, प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है, पेप्टोज। समझ में याद रहेगा? टूट गया ना भाई, प्रोटीन का तोड़ना शुरू। सबसे पहला किसका ब्रेकआउट शुरू हो गया, यानी सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटा डाइजेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म। तो सबसे पहले कौन सा कॉम्प्लेक्स मटेरियल टूटा भाई? सबसे पहले टूट गया प्रोटीन। और मिल्क प्रोटीन को स्पेशली तोड़ने वाला कौन सा भैया? रेनिन। जो मिल्क वगैरह पीते हैं, याद होगा कभी कभी छोटा बच्चा दूध पीते ही तो वो दही बना के जमा के भेज देते। दही दूध पीते ही मुंह से क्या निकाल देता है? दही। हम लोग को लगता है कि बच्चा दही अपने पास रखा है, नहीं रे भैया, वो जो HCl है ना वो दूध को क्या कर देता है? दही में बना देता है, फाड़ देता है उसको। दूध फटना बोलते हैं, एक्चुअली वो दही बन जाता है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे। हमने देखा कि वो स्टोमक में क्या हो गया। तो मेन स्टोमक का काम आप देख सकते हो कि मेन जो पर्पस है स्टोमक में डाइजेशन का, वो डाइजेशन किसका होता है? सिर्फ प्रोटीन का। अब पूरा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन टूट गया छोटे छोटे टुकड़ों में, वो भी पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ 100%, छोटे टुकड़ों में, जिससे कि फर्दर और डाइजेस्ट हो सके। ठीक है। और ये तो आप देख रहे हो अनडाइजेस्टेड फूड है, सेमी सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड, नाउ रेडी टू मूव इनटू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज द प्लेस। नेक्स्ट प्लेस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बहुत छोटा है बट लंबा बहुत बड़ा है। छोटा तो है बट लंबा बहुत है, पता नहीं क्यों उसको छोटा बोलते हैं, अभी बताते हैं हम आपको। लंबा है फिर भी छोटा है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है छोटा है फिर भी लार्ज कहलाता है। अभी बात करते हैं। चलिए, तो आपको क्या बताया हमने, जो स्टोमक में जो सेमी डाइजेस्टेड सॉलिड फूड हुआ उसको हम लोगों ने काइम बोला। अब काइम पुश आउट होकर कहाँ पहुँच जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो स्मॉल इसलिए कहलाता है कि अगर हम वॉल्यूम की बात करें, लेंथ तो स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा है और लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ छोटा है। बट वॉल्यूम की बात करें, मोटापा वॉल्यूम की बात करें, अगर वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का बड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल्यूम छोटा, लार्ज इंटेस्टाइन का वॉल्यूम बड़ा। छोटा और बड़ा, इसलिए छोटा वॉल्यूम के बेस पे इसको छोटा और बड़ा बोलते हैं। तो जो ही स्मॉल इंटेस्टाइन में काइम पहुंच गया, रख लो भैया, समझ में आ गया काइम कहाँ पहुंच गया? स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन अपना काम शुरू करने से पहले दूसरे लोगों का भी हेल्प लेता है। वो दो लोग कौन कौन हैं जो हेल्प करते हैं? वो है आपको लीवर और पेंक्रियाज। ये लीवर और पेंक्रियाज भी अपना अपना सेक्रेशन किसको देते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं, जिससे फर्दर डाइजेशन हो सके। तो बढ़ के देखे आगे क्या है। ये जो लीवर है वो रिलीज करता है बाइल जूस, याद रहेगा क्या रिलीज करता है? बाइल जूस। लेकिन वो डायरेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। आपको ग्लैंड पढ़े होंगे आप, एक ग्लैंड होता है जो डायरेक्ट अपना जूस ब्लड में डालता है, दूसरा जो होता है वो डायरेक्ट नहीं डालता है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो, दो टाइप का ग्लैंड कौन कौन सा था?
ठीक है, चलो पता करते हैं, फटाक से पता करना। दो टाइप का कौन सा ग्लैंड है? ग्लैंड दैट डायरेक्टली pour their secretion into the blood and what we call the gland that do not directly pour the blood into the blood, जो डायरेक्ट नहीं करता है। तो ये अभी चलो आगे बढ़ते हैं। तो लीवर जो है क्या सेक्रेट करता है? बाइल जूस। उस बाइल जूस में होता है क्या? बाइल सॉल्ट, जो फूड को एल्कलाइन बना देता है। अब जो फूड पहुंचा था काइन, वो तो एसिडिक था। अब ये एसिडिक फूड पे तो सब एंजाइम काम नहीं करता है, तो उस फूड को क्या बनाना जरूरी था? बेसिक। एल्कलाइन मीन्स बेसिक। तो सबसे पहला काम जो करता है ये बाइल जूस, वो क्या कर देता है? फूड को कैसा बना दिया? बेसिक बना दिया भाई। चलो, और दूसरा काम क्या किया? जो बाइल सॉल्ट जो है, अभी तक आपको पता होगा कि प्रोटीन तो कट फट के छोटा छोटा टुकड़ा बदल गया, लेकिन फैट वैसे का वैसे ही था। तो फैट को डाइजेस्ट करने के लिए आ गया लीवर ने। क्या लीवर ने दिया? बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट थोड़ा थोड़ा फैट को छोटे छोटे ग्लोबुल्स में बदल दिया। किसने बदल दिया? छोटे छोटे ग्लोबुल्स में। इसलिए कहा जाता है फैटी सब्सटेंस कम खाइए, क्योंकि लीवर डैमेज हो जाता है। डैमेज क्यों होता है? कि बहुत ज़्यादा अगर फैटी सब्सटेंस खाते हैं तो लीवर को बहुत ज़्यादा जूस सेक्रेट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा जूस सेक्रेट करना पड़ेगा तो लीवर के पास तो कैपेसिटी उतना ही है ना जितना सेक्रेट करेगा। तो खाने से पहले सोचो, ठीक है खाओ, मर्जी तुम्हारी, बस कितना खाना है आप ही को डिसाइड करना हो। पैंक्रियाज। पैंक्रियाज रिलीज करता है पैंक्रियाटिक जूस डायरेक्टली। कहाँ? इनटू द ब्लड। अब ब्लड उसको लेके कहाँ डालता है भाई? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है तो ये पैंक्रियाटिक जूस में भी 3 तरह के चीज़ होते हैं। चलो बात कर। सबसे पहला होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। पहला क्या होता है? पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को किस में बदल देता है? शुगर। स्टार्च को शुगर में बदल, यानी स्टार्च भी डिफरेंट स्टेप्स में ब्रेक होता है। माउथ में ब्रेक हुआ, मीठा लगा ना, ठीक है। अब कहाँ ब्रेक हुआ? लीवर पैंक्रियाटिक एमाइलेज के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक हुआ, ठीक है। और उसके बाद 2 एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन और लिपेज। ट्रिप्सिन और लिपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को और फर्दर तोड़ता है और छोटे छोटे पार्ट में बदलते। याद होगा पहले ही प्रोटीन बदला जा चुका है। कहाँ? याद आया? याद आया? यस यस, स्टमक। किसके द्वारा? जल्दी फटाफट देख लो किसके द्वारा बदला गया था? पेप्सिन और रेनिन ने प्रोटीन पे पहले अपना काम कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे कौन करता है? ट्रिप्सिन और लिपेज। ट्रिप्सिन फर्दर प्रोटीन को तोड़ता है और छोटा छोटा टुकड़े में बदल देता है, और लिपेज फैट को तोड़ता है। यानी फिर से फैट और प्रोटीन फिर से टूटा। किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा प्रोटीन और लिपेज के द्वारा फैट। अब ये पूरा ब्रेक किया हुआ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो था, फैट, स्टार्च, प्रोटीन, अब रह गया कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम हो गया शुरू। स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेडी टू फाइनल डाइजेशन। तो पहला स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है डाइजेस्ट द फूड फाइनली, बिकॉज देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ सेक्रेशन बाय द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो 3 कौन कौन सा पार्ट्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जल्दी फटाफट लिखो। डिओडेनम मैंने एक बता दिया, 2 और लिखो, ठीक है, फट से लिखो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ढेर सारा क्या करता है? एंजाइम्स रिलीज करता है, सेक्रेट करता है, जो उसको फर्दर क्या करता है? अब जो प्रोटीन था उसका फाइनल डाइजेशन कर दिया किसमें? अमीनो एसिड में। यानी प्रोटीन डायरेक्ट नहीं यूज होता है बॉडी के द्वारा, अमीनो एसिड के रूप में यूज होता है, ठीक है। और माल्टोज यानी शुगर का जो फॉर्म था उसको कन्वर्ट कर देता फाइनल। वो जो स्टार्च का जो थोड़ा थोड़ा टूटा हुआ फॉर्म था माल्टोज। फ्रुक्टोज भी पढ़े होंगे, फ्रुक्टोज, माल्टोज, वो छोटा छोटा टुकड़ा होता है स्टार्च का, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। फाइनली भाई ग्लूकोज तैयार हो गया एनर्जी के लिए। और जो फैट्स होता है उसको वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देता है, जिससे
एनर्जी आसानी से निकाला जा सके। स्मॉल इंटेस्टाइन समझ में आ गया? कंफर्म है? जल्दी लिख दिया कमेंट बॉक्स में। जो बचे हुए और भी लिखो भाई, 3 पार्ट कौन कौन सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। जरा ये भी बताना फेगोसाइटोसिस क्या होता है। द प्रोसेस बाय विच अमीबा इंजेस्ट द फूड इज कॉल्ड फेगोसाइटोसिस। याद रहेगा, फेगोसाइटोसिस। अब बारी आ गया है किसके बारे में पढ़ने का? अब बारी आ गया लास्ट में, जो मोटा ज़्यादा है वो है लार्ज इंटेस्टाइन। किसके बारे में पढ़ना है भाई? लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है कि जो भी फूड यूज नहीं हो पा रहा है उसमें से वाटर को अलग कर ले, क्योंकि वाटर को जो ही एब्जॉर्ब करेगा तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो उसमें से एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो सेमी सॉलिड फूड के रूप में है। तो क्या कर दिया भाई? एब्जॉर्ब कर दिया किसको? वाटर को। और जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको क्या कर लेता है? वो रिमूव कर देता है। इंजेक्शन, दिस इज कॉल्ड इंजेक्शन। ठीक है। अब आपने बीच में देखा कि वो जो फूड एब्जॉर्ब हो गया क्या चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है। और जो एब्जॉर्ब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में है, डाइजेशन तो हो गया, थोड़ा बता दूं, डाइजेशन तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल पे ढेर सारा विलीज होता है, ढेर सारा विली होता है, VILLIES। ठीक है। ये विली क्या करता है कि वो जो एब्जॉर्ब फूड है उसको ले लेता है और ब्लड को दे देता है, क्योंकि जो विलीज होता है उस विलीज में कनेक्टेड होता है ढेर सारा कैपिलरीज। याद रखना, विलीज में ढेर सारा क्या अटैच रहता है? विलीज में कैपिलरीज अटैच रहता है। समझ में आ रहा है? कॉपी में लिख रहे हो? स्मॉल इंटेस्टाइन डैश देके क्या लिखोगे? विलीज। विलीज डैश देखो क्या लिखोगे? कैपिलरीज। ठीक है। कैपिलरीज से क्या लिखोगे? अलग ब्लड वेसल्स। याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ब्लड वेसल्स। ठीक है। वो खाना लेके कहाँ चला गया? यानी वो ब्लड में मिल गया क्या? फूड आइटम। एब्जॉर्ब फूड कहाँ चला गया? मिक्सिंग इन ब्लड। याद होगा। एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ? विलीज के द्वारा, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। एसिमिलेशन मतलब मिक्सिंग कहाँ हो गया? ब्लड में। ब्लड कहाँ पहुँच गया? सेल के पास। सेल उसका क्या कर दिया? यूटिलाइजेशन। आ रहा सब स्टेप। इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, एसिमिलेशन हो गया और ये इंजेक्शन हो गया। क्या हो गया? ये इंजेक्शन हो गया। फाइनल nutrition in animal. Thank you for watching. If you found any problem, अगर कोई मिस्टेक हो गया हो या और भी कुछ जानना हो, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मिल जाएगा आंसर। ठीक है। थैंक यू। राइट इट डाउन इन योर कॉपी। कॉपी में लिखना जरूरी है, नोट्स बनाओ।